So dear learners, please welcome in my today session in Gyan Ganga Education Ken. You know very well about me. I am JD Verma. This is today's topic, cardiovascular systems. I think all are you very familiar, okay, about these topics, cardiovascular systems. First of all, okay, I want to tell you about the introduction related to this topic. Means cardio plus vessels make the system called the cardiovascular system. Yeah, we can say heart plus vessels, yeah, we can say the blood vessels, okay, make the system, and this system also called the cardiovascular system. The cardiovascular system is the transport system of body. Means कि जो भी हमारे essential nutrients हैं या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन से, वो क्या होते हैं, इस जो हमारे जो सिस्टम्स है इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं हमारी होल बॉडी में। जो भी हमारी सेल्स हैं, जो भी हमारी सेल्स के लिए नीड्स होती है, जो भी प्रॉपर जो हम कह सकते हैं सिंपल उनका जो फूड होता है, या मीन्स फॉर द एनर्जी पर्पज के लिए, या जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेल्स हो गई, या उसका जो भी टिश्यूज या मसल्स वगैरह, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। It comprise blood, heart and the blood vessels. Okay, this system consists of the blood and the heart and the blood vessels. The system supply nutrients, already I told you, to and remove waste products from the body, or we can say from various tissue of body. The conveying media in liquid in form of blood which flow in fluid tubular system. So we can say this system consisting of the main three components of body, blood, heart and blood vessels. Next one, the function of the cardiovascular systems. Already I told you about the functions of the cardiovascular systems. Transport nutrients, hormones, remove waste products, gasio exchanges, immunity. Blood vessels transport blood, carries oxygen and carbon dioxide, also carries nutrients and wastage, यानी जो भी हमारे वेस्टेज होते हैं, जो भी हमारे वेस्टेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें क्या, उनको क्या है, ये पास आउट करता है, या हम कह सकते हैं क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है हार्ट पंप्स ब्लड, ओके, थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स द हार्ट पंप द ब्लड, ओके, इन द होल ऑफ बॉडी एंड रिमूव द toxins and the waste product with the help of the circulatory system, with the help of the blood. Components of the cardiovascular systems. Already I told you about these are the components of cardiovascular system: blood, heart and blood vessels. The blood cells and the plasma. Blood cells are means blood consists of the blood cells and plasma. Now here I mention the blood cells. Erythrocytes, also known as red blood cells, leukocytes, white blood cells, and thrombocytes, also known as the platelets. You know very well RBC, or we can say WBC or platelets. Components of blood, plasma is the fluid portion. Yeah, we can say in the liquid form, yeah, in the lighter weight, the plasma is also consist in the blood, and these are the important components of the blood. Now heart. Heart is a four-chambered hollow muscular organ approximately the size of your fist, or we can say the clenched fist of the human beings. Location superior surface of diaphragm, यानी जो आपका superior surface होता है किसका, diaphragm, उस पे located रहता है left of the midline, यानी कि जो आपका left side है उसका जो midline है, यानी left of the midline of your diaphragm, anterior to the vertebral column, posterior of the sternum, posterior to the sternum. So this is a exact जो है locations or the position of the heart in the human body. Heart, you can say with the help of this diagram, with the help of this image, you can see properly. Superior vena cava, this one, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं अगर आपको
देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है, ये यहाँ शो कर रहा है सुपीरियर वेना कावा, दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस वन, एंड ऑर्टा जो रेड कलर का आपको शो किया गया है, दिस इज द ऑर्टा, पेरिटल प्यूरा कट, ये आपका जो है, जो प्यूरा है वो है, यानी कि जो हम कह सकते हैं द अपर लेयर ऑफ द योर, जो भी आपका जो लंग्स होता है उसका। तो ये पिक्चर के या हम कह सकते हैं इमेज के जो है थ्रू ये आपको जो है क्लियरली शो किया गया है यहाँ। नेक्स्ट वन, it is also a diagram for the betterment of your knowledge. You can see here, and this is a very beneficial for you to understand how to circulate the blood, okay, in the human heart, we can say in the heart. This one is the aorta. Already I told you about this. तो देखिए ये जो आपका जो दिखाया गया है ये डायग्राम, ये क्या है, ये आपका ऑर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आपका जो इस टाइप का जो पल्मोनरी आर्टरी का जो है यहाँ पर शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ एरो। दिस इज अ लेफ्ट आर्ट्रियम, जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, दिस वन पल्मोनरी वेन्स, ये आपकी जो, ये देखिए टू टाइप्स के जो एरो यहाँ शो कर रहे हैं, ये आपका क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, दिस वन, एंड सेमी लूनर बॉल्ब्स, और यहाँ पे जो बॉल्ब्स हैं जो आपका क्या है, आपका जो लेफ्ट जो आपका वेंट्रिकल्स है, और आपका जो ऑर्टिक बॉल्ब हम कहते हैं जो ऑर्टा है उसका, ये देखिए ये जो है डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में जो एरो के माध्यम से जो है स्वैप किया गया है। और नेक्स्ट आपका आ जाता है दिस पोर्शन, जिसे बोलते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, जो आपका क्या है, यानी कि जो आपका हम कह सकते हैं जो आपका टॉप चेंबर है या अपर चेंबर से उससे जो लोअर लेयर चेंबर में क्या होता है, आपका जो ट्रांसमिशन होता है किसका, ब्लड का, या बीस हम कह सकते हैं जो हमारा लेफ्ट आर्टरी से क्या होता है, ब्लड जाता है हमारा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तो उसके लिए जो वॉल्व दिखाया गया जिसका नाम है आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इन द राइट साइड pulmonary artery, this one, and anterior vena cava, right atrium, and pulmonary veins, जैसे टू आपको लेफ्ट साइड में दिखाए गए थे ये पिक्चर में, सेम जो है राइट साइड में होते हैं। सेमी लूनर वॉल्व्स आपका जो है, ये आपका क्या होता है कि जो आपकी जो पल्मोनरी वेंट्रिकल्स होता है उसके जो है बीच में जो वॉल्व्स होता है उसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। नेक्स्ट वन आपका है जो है आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सेम जैसे कि आपको लेफ्ट वाले चेंबर में बताया गया था, सेम। तो दिस इज द डायग्राम्स ऑफ योर हार्ट एंड हाउ टू द सर्कुलेट ऑफ द ब्लड, ओके, in different type of the chambers, we can say in the different type of the portion of heart, and circulate to the whole body, and after that we can say the deoxide blood, okay, carry from the body to the hearts, and after that the heart also transport the blood to the lungs. So this one is the system function of the hearts. Generating blood pressures means functions क्या है हार्ट के, जनरेट करता है, किसे करता है, ब्लड का जो प्रेशर है उसे जनरेट करता है, ठीक है, प्रोटीन ब्लड, और ब्लड को रोटेट करता है। हार्ट सेपरेट्स द पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस, ensuring one-way blood flow. Heart valves ensure one-way flow, regulating blood supply, changing in the contractions rate and the force match blood delivery to changing metabolic needs. Next one, blood vessels, a closed network of tubes. आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या एक क्लोज नेटवर्क टाइप का होता है आपका, एज ए काइंड्स ऑफ ट्यूब्स, ओके, दीज इंक्लूड्स arteries and capillaries and veins. These are the components of the blood vessels. We can say the blood vessels includes arteries, capillaries and the veins. These are kinds of the like a network, a closed network of the tubes. So these are most important.
in the vascular system, blood vessels, arteries, distributing channels, we can say ये क्या होते हैं, हमारे ब्लड को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी, या वी कैन से जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वर्किंग जो मसल्स होती हैं उनके लिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करते हैं, चैनल्स का काम करते हैं। और इनका जो वॉल होता है वो कैसे होते हैं, ये थिक वॉल ट्यूब्स होते हैं, इनका जो वॉल होता है वो थिक होता है, इलास्टिक फाइबर्स के बने हुए होते हैं या इलास्टिक टाइप के फाइबर्स होते हैं। सर्कुलेट स्मूथ मसल्स, और जो सर्कुलेट करते हैं, जो सर्कुलेशन होता है ओके विद द हेल्प ऑफ द स्मूथ मसल्स। बी कैपिलरीज, ओके माइक्रोस्कोपिक वॉल्स, इन्हें क्या हम माइक्रोस्कोपिक वॉल्स के नाम से भी जानते हैं। वन सेल थिक, और इनका जो होता है वन सेल होता है वो क्या होता है, थिक होता है। सेवर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन आपका जो है वो है क्या, वेंस। वेंस को हम बोलते हैं ड्रेनिंग चैनल्स। ड्रेनिंग चैनल मीन्स कि जो भी आपके आफ्टर द डिऑक्साइड ब्लड, यानी जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है या जब एक्सचेंज होता है, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, देन क्या होता है, जो वेंस क्या ब्लड को कैरी करते हैं और कैरी करके क्या टूवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट जो आपका होता है उस हार्ट में ये ब्लड को पोर कर देते हैं, मीन्स वहां तक पहुंचा देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से क्या होता है, ब्लड हमारा हार्ट तक पहुंच जाता है। आफ्टर हार्ट क्या होता है, जो डिऑक्साइड ब्लड होता है वो हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है लंग्स में, किस लिए, जिससे कि जब रेस्पिरेशन होता है तो ब्लड फिर से ऑक्सीडेटेड हो सके या उसमें ऑक्सीजन मिल सके। ब्लड वेसल्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ओके आई एम टेलिंग यू द पार्ट्स ऑफ द आर्टरीज, जनरल स्ट्रक्चर्स। द आर्टरी डिवाइडेड in three portions, we can say the outer, middle or inner portions. So you can see here with the help of this diagram, with the help of this image, this is the artery wall, the outer layer known as tunicula externa। तो ये आपका जो लेयर है, ये आपका आउटर लेयर होता है किसका, जो आपकी आर्टरी वॉल्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकिया इंटीमा भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं वो सॉरी जो है एस्टेरमा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है मिडिल, जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूनिका मीडिया, दिस वन, ये आपका जो है मिडिल लेयर है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो आर्टरी होती है, आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थ्री लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, और उस टाइप से जो आउटर लेयर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एस्टर्ना बोलते हैं, या हम कह सकते हैं उसे ट्यूनिका जो है एडवेंटिटिया। ये देखिए जो यहाँ पर दिया गया है दिस वन, ये क्या है आपका, ये जो इमेजेस है उसका जो आउटर लेयर है उन्हीं के नेम्स हैं, एस्टर्मा भी बोलते हैं और उसे क्या एडवेंटिटिया भी बोलते हैं। मिडल जो है हमारा मिडल लेयर, उसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका हो गया इंटीमा, जो आपकी इनर लेयर है, और उसके नीचे भी एक बेसमेंट टाइप का रहता है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन रहता है जो आपकी इनर लेयर होती है उसमें। तो देखिए ये जो हो गई आपकी इनर लेयर है दी हुई, जो है आपका पॉइंट दिया है फर्स्ट वन इनर लेयर, देन आपका ये क्या है आपका सेकेंड वन जो है आपकी जो है मिडिल जो है लेयर्स है। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ द आर्टरी वॉल्स। तो जो हमारी आर्टरी वॉल्स होती है उस वो बॉल जो बनी हुई होती है वो क्या थ्री लेयर्स में होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिटिया, इस नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इट इज आल्सो हियर ओके द डायग्राम ऑफ द आर्टरी वॉल्स। देखिए यहाँ पर जो आर्टरी है, आर्टरी को ही पिक्चराइज किया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नॉलेज, ऑफ बेटरमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो दिस वन इज द इनर लेयर। जो इनर लेयर होता है हमारा किसका, आर्टरी का, जो किस चीज का बना हुआ होता है, देखो लिखा हुआ भी है एंडोथेलियम जो होता है दैट ओके लाइंस द ल्यूमन ऑफ ऑल वेसल्स। जो मिडल लेयर्स होता है जैसे कि यहाँ बताया गया है मिडल लेयर्स, तो मिडल लेयर में होता है स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, ये आपका जो मिडल लेयर है इसका आपका जो आर्टरी वॉल्स है। तो मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स सेल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, और उसके साथ क्या रहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं। यही रीजन से इसमें क्या होता है, फ्लेक्शंस होते रहते हैं, या हम कह सकते हैं क्या फ्लेक्सिबल होती है। आउटर लेयर, ये आपका जो आउटर लेयर है वो आपका क्या है, कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है। तो आपका जो आउटर लेयर है वो आपका क्या कोलेजन जो है फाइबर्स है उस चीज का बना हुआ होता है,
आपका जो मिडिल है वो आपका स्मूथ मसल्स विद द हेल्प ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स एंड द इनर लेयर आल्सो एंडोथेलियम दैट लाइंस द lumen ऑफ ऑल मसल्स। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग पार्ट्स में करके इसलिए बताया गया कि आप एक अच्छे से उस चीज को समझ सकें कि उसके जो है लेयर्स क्या रहते हैं और वो किस किस जो है टिश्यू या किस किस मसल से या किस किस फाइबर से जो है मिलके बने होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये आउटर जो है इमेज तो किया गया है यहाँ डायग्राम के थ्रू, आपको इसीलिए बताया गया है कि जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए ये जो है लेयर, ये जो दिखाया गया है ये आपका आउटर लेयर है। आउटर लेयर किस चीज का? आपका जो भी आर्टरी है उसका आउटर लेयर, जैसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर उसके बाद मिडिल लेयर है आपका ये दिया हुआ जो यहाँ शो कर रहा है, जो आपका क्या है ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद है ट्यूनिका इंटीमा। ये आपका क्या है इंटरनल लेयर्स हैं। जो इंटरनल लेयर्स हैं उसके पीछे भी एक क्या होता है, एक बेसमेंट टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम्स का बना हुआ होता है। और इसमें एक जो देखो ये एक लाइन दिख रही है ब्लू कलर्स का, जो क्या होता है सबको सेपरेट करके रखता है। जो भी हमारी जो वॉल्स हैं, वॉल्स में जो लेयर्स हैं उन्हें सेपरेट करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्या होता है इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट आ जाता है जो आपकी स्मूथ मसल्स है। जैसे आपको पहले बताया था कि जो आपका मिडल्स है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, तो वो स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक्स जो फाइबर्स होते हैं उनका बना हुआ होता है। और इन दोनों के यानी आउटर जो आपका क्या है आउटर लेयर और द मिडल लेयर्स के बीच का जो पार्ट होता है, यानी कि जो इन्हें डिवाइड करके रखता है, सेपरेट करके रखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। देखिए ये एक्सटर्नल मीन्स आउटर साइड का, इंटरनल मीन्स इनर साइड का। तो ये आपकी जो मेन क्या है आपकी थ्री जो है लेयर्स होती हैं किसमें हमारी आर्टरी में, और उनसे मिलकर एक आर्टरी बनी हुई होती है। तो ये आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है डीप में जो पूछे जाते हैं आर्टरी से रिलेटेड, तो इस टाइप से जो है आपको ये जो टर्मोलॉजी है ये पता होनी चाहिए, और जिससे कि आप अच्छे से उन चीजों को कर सकें। जो भी आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए आप उन्हें अच्छे से टैकल कर सकें और बढ़िया से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाता है आपका, कंडक्टिंग वेसल्स हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, रेसिस्टेंस वेसल्स होता है, एक्सचेंज वेसल्स होता है, कैपेसिटेंस जो है या रिजर्वेरियर्स वेसल्स होते हैं। तो ये आपका क्या दीज मतलब क्या क्लासिफिकेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये आपके सभी क्लासिफिकेशंस है जो आपको यहाँ पर जो है वन बाय वन आपको जो है बताए गए हैं। तो ये हमारे क्या कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया, यानी कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं कुछ, कुछ हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होते हैं, कुछ क्या हमारा रेजिस्टेंस जो है वेसल्स होते हैं, एक्सचेंज वेसल्स और कैपेसिटेंस या रिजर्व जो है रिजर्वर्स वेसल्स। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस या दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन, आर्टरी, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड ओके अवे फ्रॉम द हार्ट। मीन्स क्या होता है कि आपका जो भी ब्लड्स है, तो आर्टरी का वर्क क्या होता है कि उस ब्लड को वह क्या है आर्टरी के माध्यम से हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्टरी द हार्ट पंप द ब्लड ओके टू द होल बॉडी, या जो भी आपकी नीड्स होती है वहां तक आपको क्या जो भी हमारी वर्किंग सेल्स है मसल्स है वहां तक पहुंचाते हैं। तो ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ओके आर कॉल्ड आर्टरीज। उन्हें हम क्या बोलते हैं आर्टरीज बोलते हैं। दे आर द थिकेस्ट, थिकेस्ट मीन्स मोटाई में होते हैं या मोटे होते हैं, थिकेस्ट ब्लड वेसल्स ओके, यानी जो आपकी आर्टरी होती है वो थिकेस्ट होती है यानी कि मोटी होती है, थिकेस्ट जो है आपके क्या ब्लड वेसल्स, एंड दे कैरी ब्लड हाई इन ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीजेंटेड ब्लड। यानी इसमें जो ब्लड को जो कैरी करता है या मीन्स जो ब्लड को जो ले जाती है या होल बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये हमारा क्या होता है जिसमें क्या रिच रिच अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो है रिच अमाउंट में क्या ऑक्सीजन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये देखिए इसमें भी डायग्राम आपको जो है दिखाया गया है जैसे कि पहले आपको बताया गया था, ठीक है। टीन का मीडिया आपके जो मिडल लेयर्स है जो स्मूथ मसल्स सेल्स एंड द इलास्टिक फाइबर्स के होते हैं बने हुए, और जो आपकी जो इंटरनल लेयर्स है वो आपकी क्या है टीन का इंटीमा, जिसे क्या है एंडोथेलियम दैट लाइंस द ल्यूमन ऑफ ऑल वेसल्स। फिर नेक्स्ट है आपकी जो
आउटर साइड की, जिसे हम आउटर बोलते हैं, इंटीमा एडवेंटिटिया, या इसे हम एक्सटर्निया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या आपका कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट, आर्टरीज accompanied by वेन एंड नर्व्स। देखिए जो हमारी आर्टरी होती है वो किसका होता है, accompanied by the veins and nerves, lumen in small, no walls। यानी जो आपकी आर्टरी होती है उसमें किसी भी टाइप का, कभी कभी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपके जो बॉल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नो बॉल्स, यानी जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरी में किसी भी टाइप का कोई आपका बॉल्स नहीं होता है। तो ये देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड ब्रांचेस जो है, सॉरी ब्रांचिंग, और जो आपका क्या जो ब्रांचिंग है उन्हें क्या रिपीटेड करती रहती है, मीन्स कई ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो ये क्या है आपका जो आर्टरी है उसको अलग अलग तरह से जो है यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है, अलग अलग तरह से पिक्चराइज किया गया है, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है आपका आर्टरी से रिलेटेड वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए और उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी में या ब्लड सर्कुलेशन में। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो आर्टरी प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स, ओके, टू कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू होल बॉडी, फ्रॉम द हार्ट टू जो भी हमारी वर्किंग मसल्स हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारा क्या होता है विद रिच अमाउंट्स ऑफ द ऑक्सीजन, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड या रिच अमाउंट्स ऑफ या रिच जो है ऑक्सीजन ब्लड। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्टरी। फर्स्ट पॉइंट्स, इलास्टिक, फॉर एग्जांपल ऑर्टा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। यानी आपका क्या जो क्लासिफिकेशन है ऑर्टी का वो देखिए अलग अलग जो है पोर्शंस में किया गया है। जो एक इलास्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका ऑर्टा होता है, एंड इस्ट मेजर ब्रांचेस और उसके जो मेजर ब्रांचेस होते हैं। मस्कुलर, फॉर एग्जांपल रीनल, ओके, टेस्टिकुलर और रेडियल एंड टीवियल एक्सेट्रा। आर्टेरियोलियस जो आपका क्या होता है, यानी कि लेस देन 0.1 mm का उसका क्या होता है, हम कह सकते हैं उसका जो डायोमीटर होता है उसका बना हुआ होता है आर्टेरियोलियस। तो ये होते हैं। अब ये इनके भी अलग अलग कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम क्या होता है टर्मिनल आर्टेरियोलिस, ठीक है, मेटा आर्टेरियोलिस, उसके बाद है थ्रोफियर ऑफ रेड चैनल। या thank you for watching my session या watching my video, or you know about this is my social site, so you can follow here. थैंक यू। अगर आप मेरा यूट्यूब पे भी चैनल से अगर आप उसे जो है आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके, उन्हें मोटिवेट करें, जिससे कि जो सेशंस होता है उसे ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।